Hello children, I am Mrs. Mona Jajora and today I am going to take your SST class chapter 6 The Great Indians. Before starting the class, you should know why people are called great. Like Ashoka the Great, Mahatma Gandhi the great leader. Why? Because of their never forgetting work for our country India. In this chapter we will see great personality and their work for our country India. So let's begin. Chapter 6 The Great Indians. Content. Introduction. Some great Indians personality and their contribution. Rani Lakshmibai, Bal Gangadhar Tilak, Birsa Munda, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu, B.R. Ambedkar and Dr. APJ Abdul Kalam. Firstly, we see new words in this chapter. Prominent, important or famous. Vigorously in a way that involves physical strength, effort or energy. Third, suffrage, the right to vote in political election. Women's suffrage, the right of women by law to vote in national or local election. Non-aligned, relating to a state in the non-aligned movement. 6. Personality, a set of qualities that makes a person distinct from another. 7. Birthright, a natural or moral right possessed by everyone. 8. Acquire, learn or develop. 9. Childhood, the early period in the development. 10. Campaign, work in an organized and active way towards a particular goal. Introduction. India has a rich heritage of scientists, poets, artists, mathematicians and freedom fighters known for their bravery, courage and self sacrifices. हमारे इंडिया में विरासत रही है वैज्ञानिकों की, कविकारों की, आर्टिस्ट, मैथमेटिशियंस मीन्स गणितज्ञ और स्वतंत्र सेनानी जो कि जाने जाते हैं अपनी बहादुरी के लिए, अपने बलिदान के लिए. ओके. In this chapter we will learn about some Indians who have made significant contribution in various field. इस पार्ट में हम देखेंगे कि अलग अलग कार्यों के लिए जो हमारे पर्सनालिटी, इंडियंस पर्सनालिटी रहे उनके बारे में. ठीक है. ब्रेवेस्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, रानी लक्ष्मीबाई. हमारे इतिहास की सबसे बहादुर महिला के रूप में इन्हें जाना जाता है. ठीक है. चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्ट वी शुड नो व्हाई वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट रानी लक्ष्मीबाई. Children, sometimes you must have heard this poem about Rani Lakshmibai at school or at your home. बुंदेलहर बोले के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. ओके. We are going to see where Rani Lakshmi was born, her family, her work and her death. Okay. Birth and family. Rani Lakshmibai was one of the bravest women in Indian history. हमारे भारत के इतिहास में सबसे बहादुर महिला के रूप में उन्हें जाना जाता था. Born in 1835, her childhood name was Manikarnika and after marriage she was called Lakshmi Bai. बचपन में उनका नाम था मणिकर्णिका एंड शादी के बाद में उनको क्या बुलाया गया था? लक्ष्मी बाई. She married at a young age to the ruler of Jhansi, महाराजा गंगाधर राव. उनकी शादी यंग एज में ही हो गई थी महाराजा गंगाधर राव के साथ में, जो कि झांसी के महाराज थे. ओके. रानी लक्ष्मीबाई टुक ओवर एज द हेड ऑफ द स्टेट आफ्टर हर हस्बैंड डेथ. उनके हस्बैंड की डेथ के बाद में झांसी का संभाल किनको दिया गया था? रानी लक्ष्मीबाई को दिया गया था. वार. रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध उन्होंने लड़े थे वो किसके बीच में था? रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिश के बीच में था. ठीक है. वार बिटवीन रानी लक्ष्मीबाई एंड ब्रिटिश आर्मी ट्राई टू कंकर झांसी. ब्रिटिश आर्मी कोशिश कर रही थी झांसी को अपने में मिलाने के लिए. ठीक है. झांसी रानी लेड हर आर्मी अगेंस्ट देम एंड फोर्ट ब्रेवली. तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर उनके बहादुरी के साथ में सामना किया था. She became an important leader of the revolt of 1857. She died in Gwalior while fighting against the British Army in 1858. उन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत बहादुरी दिखाने के कारण उनको रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 का युद्ध था उसमें सबसे बहादुर महिला के रूप में जाना गया था. बहादुर महिला या बहादुर नेता के रूप में जाना गया था. और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? युद्ध के मैदान में ग्वालियर में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए. ओके. Rani Lakshmibai of Jhansi is an inspiration of everyone. Being a woman, she faced the British strongly.
रानी लक्ष्मीबाई हम सब के लिए आज भी एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि एक महिला होने के साथ साथ उन्होंने बहादुरी के साथ में ब्रिटिश के साथ में स्ट्रांगली युद्ध लड़ा था और वो विजयी भी हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक, बाल गंगाधर तिलक। बर्थ एंड फैमिली। बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो नॉन एज लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को हम लोग लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। He was born in Maharashtra in 1856. He was one of the first Indian to demand self-rule of Swaraj from the British. वह पहले भारतीय थे जिन्होंने सेल्फ रूल स्वराज की मांग की थी ब्रिटिश के साथ में, ठीक है। वार। तिलक गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। जो एक स्लोगन है बहुत फेमस है, स्वतंत्रता हमारा, स्वतंत्र जो हमारा राइट है और हम उसको लेकर रहेंगे। ये किसने स्लोगन बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ओके, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। स्वतंत्रता स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं उसे लेकर रहूंगा। अलॉन्ग विथ लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल, Tilak opposed the British vigorously during the Swadesh and boycott movement between 1905 and 1907। लाला लाजपत राय जो लाला लाजपत और विपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज और बॉयकॉट वाला जो मूवमेंट है उसको शुरू किया था 1905 एंड 1907 में। ओके, Tilak established the Deccan Education Society. He also started the Marathi paper Kesari। और उन्होंने स्थापना की थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की और एक न्यूज़पेपर मराठी केसरी भी उन्होंने स्टेब्लिश किया था, मतलब स्थापित किया था। ओके, तिलक established the Home Rule League with Annie Besant and मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। क्लियर। बिरसा मुंडा। Birth and family. Birsa Munda was an Indian tribal freedom fighter, religious and folk hero. बिरसा मुंडा जो आदिवासी फाइटर, स्वतंत्र सेनानी थे आदिवासियों के, और वो एक धार्मिक पुरुष और साथ में लोकप्रिय नेता थे आदिवासियों के बीच में, ठीक है। Birsa Munda was born in 1875 in Jharkhand. He belonged to the Munda tribe and grazed sheep in the forest when he was young. जब वो यंग थे तब वो कहाँ से, बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज की जो एक जाति रहती है वहाँ के थे और भेड़ बकरियाँ चढ़ाते थे, ठीक है। वार। In the 1817, the British encouraged big farmers and landlords to acquire the tribal lands. क्या हुआ था 1817 में? ब्रिटिश जो थे उन्होंने इनकरेज किया था बड़े बड़े फार्मर्स को और जमींदारों को कि जो छोटे जो किसान हैं उनकी ज़मीनों को हथियाने के लिए। एज ए रिजल्ट मेनी ट्राइबल्स मैन फ्रॉम द मुंडा एंड ओराव ट्राइब्स लॉस्ट देयर राइट्स टू देयर ऑन प्रॉपर्टी एंड बिकम फार्मर लेबर्स। क्या हुआ था? ये सब जब जमींदारों ने और बड़े किसानों ने जब जमीनें सब हड़प ली थी बिरसा जाति के लोगों से और ओराव जाति के लोगों से, तो जो वहाँ के जो किसान थे किड्स वो गरीब हो गए थे और वहाँ अपने ही खेत में वो मजदूर बन के काम कर रहे थे, ठीक है। बिरसा led a movement in the tribal area around Chota Nagpur Plateau, forcing the colonial government to pass law to protect the land rights of the tribesmen. बिरसा led a movement in the tribal area around छोटा नागपुर प्लेटो। बिरसा ने जब ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया था छोटा नागपुर प्लेटो के यहाँ पर, उसके आसपास के एरिया में। उन्होंने जो औपनिवेशिक जो रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, उनको बोला था कि आप ऐसा एक पास करें, लॉ पास करें जिसमें जो किसान लोग हैं, जो ट्राइबल्स किसान लोग हैं, उनकी ज़मीन उनका हक हो और वो अपनी ज़मीन पे अपनी ही ज़मीन समझकर काम कर सके। He becomes a popular leader of the tribal movement। और यह सब जब उन्होंने जब ये सब निकाला था, अभियान शुरू किया था, उसकी वजह से वो ट्राइबल में एक फेमस लीडर बन चुके थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. His term lasted from 1947 to 1964। जवाहरलाल नेहरू हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और साथ में उनका जो कार्यकाल था वो था 1947 टू 1964 के बीच का। ओके, बर्थ एंड फैमिली। ही वॉज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1869 एट इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश। ही ऑल्सो नोन एज पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। और कौन सी डेट थी? 14 नवंबर। ही ऑल्सो नोन एज पंडित नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जी को हम पंडित नेहरू के नाम से भी जानते हैं। ओके, Children, do you know
दैट वी सेलिब्रेट चिल्ड्रन डे एवरी ईयर ऑन द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या आप जानते हैं कि हम हर साल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14 नवंबर को? वो किसके बर्थडे पे रहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे रहता है। ओके। जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी लीडरशिप। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, जो कि किसके लीडरशिप में था? महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में था। ओके। He participated in the Quit India movement and was impressed। पार्टिसिपेट उन्होंने किया था जो भारत छोड़ो आंदोलन था, और उसकी वजह से वो कैद भी हुए थे। He known as the creator of modern India, Nehru led India on the path of planned development। उन्होंने एक आधुनिक भारत की नींव रखी थी, और हमारे जो भारत देश को है वो कहाँ पे विकास की ओर लेकर बढ़े थे। ठीक है। नेहरू स्टार्टेड द नॉन अलाइंग मूवमेंट, और उन्होंने गुट निरपेक्ष वाले जो मूवमेंट भी शुरू किए थे। क्लियर? Sarojini Naidu, birth and family। Sarojini Naidu born in 1879 in Hyderabad। She was one of the foremost women leaders in India's struggle for freedom। सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 1879 में हुआ था, और वो एक भारत की आज़ादी में एक अग्रणी महिला नेता थी। ठीक है। She was political activist, feminist poet and the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and to be appointed an Indian state government। ठीक है। वो एक बहुत अच्छी कवित्री थी, एक अच्छी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कार्यकर्ता थी राजनीति की, और साथ में वो फर्स्ट टाइम वो इंडियन कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी चुनी गई थी, और बाद में वो अपॉइंट की गई थी किसके लिए? स्टेट गवर्नर जनरल के लिए। ठीक है। B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे संविधान के जनक इनको बोला जा सकता है या बोलते हैं। ठीक है। B.R. अम्बेडकर ऑल्सो नॉन एज बाबा साहेब अम्बेडकर। ही वॉज बोर्न 14 अप्रैल 1891 एंड डाई 6 दिसंबर 1956। बाबा साहेब को हम लोग ये B.R. अम्बेडकर को हम बाबा साहेब अम्बेडकर के भी नाम से जानते हैं, और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, और कब इनकी डेथ हुई थी? 6 दिसंबर को। बाबा साहेब फोर्ट फॉर द राइट ऑफ द अनटचेबल्स इन इंडिया। उन्होंने अछूतों के लिए एक लड़ाई लड़ी थी और एक अभियान शुरू किया था। बाबा साहेब अम्बेडकर was an Indian jurist, economics, politician and social reformer who inspired the Dalit Buddhist movement and campaign against social discrimination towards the untouchables। बाबा साहेब क्या थे? वो एक बहुत अच्छे जूरिस्ट थे, इकोनॉमिक्स भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, और साथ में उन्होंने दलित और बुद्धिस्ट लोगों के लिए क्या किया था? एक मूवमेंट शुरू किया था, एक कैंपेन शुरू किया था, जिसके थ्रू जो अनटचेबल मीन्स अछूतों को, जो छोटी जाति उच्च नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया था। ही वॉज द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर भी रह चुके थे। ही स्टार्टेड पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर कॉल्ड मुखनायक इन 1920। उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश किया था, मुखनायक स्थापित किया था। ओके। बाबा साहेब वॉज ग्रेट लीडर एंड हैड डॉक्टरेट्स इन अ लॉ डिग्री। वो बहुत महान नेता थे, और साथ में उन्होंने कानून की डिग्री भी ली हुई थी। हिज बर्थडे इज नाउ कम्युनेटेड एज अम्बेडकर जयंती। उनका जो जन्मदिन है उसको हम लोग आज भी याद करते हैं अम्बेडकर जयंती के रूप में। लास्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड आइडल फॉर द यूथ। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और आइडल फॉर यूथ, और यूथ के लिए वो एक आइडल भी रह चुके थे। ठीक है। डॉक्टर एपीजे कलाम वो सब मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। प्रोफेसर एन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड एन ऑथर। वो बहुत अच्छे एक प्रोफेसर थे, एक अच्छे वैज्ञानिक थे, और एक ऑथर थे। ठीक है। बॉर्न इन रामेश्वरम 1931, ही वॉज ऑल्सो नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। वो उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में 1931 में, और हम उनको मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मिसाइल मैन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए उन्होंने दिया था। ठीक है। He served as the 11th president of India from 2002 to 2007, और उन्होंने 2002 से और 2007 के बीच में वो भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए थे।
He received several prestigious awards throughout his lifetime, including the भारत रत्न. उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, उनमें फर्स्ट है लाइफ टाइम एंड भारत रत्न पुरस्कार. ओके. डॉक्टर कलाम प्लेड अ की रोल इन द न्यूक्लियर टेस्ट विच वॉज कंडक्टेड इन पोखरन. उन्होंने एक मेन रोल निभाया था जो पोखरन में 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसमें. And last, he is inspiration figure for students and his humility touch everyone. वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो छात्रों के बीच में और युवाओं के बीच में बहुत फेमस थे, आइडल थे कि उनकी विनम्रता के कारण. And he passed away on 27th July 2015. और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27th July 2015. Some remember points. Rani Lakshmi Bai, one of the bravest women in Indian history. Birsa Munda was an Indian tribal freedom fighter. Sarojini Naidu was one of the foremost women leaders in India's struggle for freedom. रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवेस्ट वुमेन के रूप में जानी जाती है हमारे इतिहास में. और बिरसा मुंडा वॉज अ इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, आदिवासी स्वतंत्र सेनानी के रूप में उन्हें जाना जाता है. सरोजिनी नायडू वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट वुमन, एक अग्रणी नेता थी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए. एंड बी आर अम्बेडकर वॉज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो संविधान के जनक इन्हें माना जाता है बी आर अम्बेडकर जी को. ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाइल फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तब वो वहाँ के चेयरमैन या बनाए गए थे. ओके चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज एंड हियर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीक. टेक केयर.